Okay, today we are starting paper is Feb March 2022. It's paper 2 variant 2. Okay, so far I think we are done with around 5 to 6 papers. 6 papers so last time tak ho gaye the. I think this is the 7th yearly paper we are going to do now. Okay, the question number 1 is saying figure 1.1 shows how the first ionization energies vary across period 2 from lithium, beryllium, carbon, boron, carbon. So this is period 2 of the periodic table. So first ionization energies increase हो रही है of course, but we know from group 2 to group 13 there is a decrease in first ionization energy. Then from group 15 to group 16 there is a decrease due to spin pair repulsion. हमने पीरियड 3 के लिए पढ़ा हुआ है, ये पीरियड 2 के लिए गिवन है, तो वही ट्रेंड फॉलो होगा जो पीरियड 3 के लिए होता है. जैसे लिथियम की जगह हमारे पास सोडियम था, बेरिलियम की जगह मैग्नीशियम था, बोरॉन की जगह पे एल्यूमिनियम था, कार्बन की जगह पे सिलिकॉन था, नाइट्रोजन की जगह पे फास्फोरस था, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर था, फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन होता है और नियॉन की जगह पे आर्गन होता है. यहाँ पे पीरियड 2 के लिए दिया हुआ है, तो रीजन सारे वही होंगे उसके जो आपके पीरियड 3 के रीजन थे. बाय first ionization energy of aluminum is less than that of magnesium, and by first ionization energy of sulfur is less than that of phosphorus. तो spin pair repulsion वाला रीजन आएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, और बोरॉन और बेरिलियम में 3p वाला रीजन आ जाएगा. ठीक है, अच्छा जी. कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from 1 mole of gaseous atoms to produce 1 mole of gaseous positive 1 ions. ठीक है, तो ऑक्सीजन वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बट राइट नाउ वी आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, सो ऑब्वियसली गैसियस ऑक्सीजन प्लस 1 आयन विल फॉर्म. ठीक है, इसमें स्टेट सिंबल्स लिखना नहीं भूलना, गैसियस आयन और गैसियस ऑक्सीजन एटम, ये गलती हो जाती है. स्टेट एंड एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज अक्रॉस पीरियड 2. तो जनरल ट्रेंड में you do not have to discuss about the decrease between beryllium and boron और nitrogen and oxygen. general trend लिखा हुआ है ना, तो you have to generalize your answer के first ionization energy across the period increase होती है, और increase होने के सारे reasons लिखना है कि increase क्यों होती है. because across the period nuclear attraction increase होती है due to increase in number of protons. shielding effect stays constant because number of shells stays constant. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन हमारे पास इंक्रीज हो रही है. लिख लोगे या लिखवाऊं इसका आंसर? जो हमने अपने क्लास लेक्चर्स में लिखा हुआ है वही आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज increases across the period as nuclear attraction increases due to increase in number of protons but shielding effect stays constant as number of shells stays same. So more energy is required to remove the electron. ठीक है भाई, मूविंग ऑन. एक्सप्लेन व्हाई ionization energy A in figure 1.1 does not follow the general trend in first ionization energies across period 2. What is ionization energy A? It is the first ionization energy of oxygen. Despite its being greater than nitrogen, it is lesser than nitrogen. और रीजन क्या होता है? स्पिन पेयर रिपल्जन.
जो फॉस्फोरस और सल्फर का रीजन है वही रीजन है यहाँ पे भी, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स at 2p3, oxygen ends at 2p4. So in oxygen the electron to be removed is a paired electron. ठीक है, so which experiences repulsion, hence it is easier to remove it. इसमें क्या लिखोगे? Electron to be removed from oxygen in 2p orbital experiences spin pair repulsion, which counters the nuclear attraction, because it is for 2 marks now, so you have to explain or elaborate your answer further. Why spin pair repulsion? Due to increase in repulsion, why first ionization energy is lower as than expected, because spin pair repulsion is actually countering the nuclear attraction, against काम कर रहा है nuclear attraction के वो. ठीक है भाई, आगे बढ़े. Spin pair repulsion, because देखो क्या होता है Zain, when in the same orbital if you have 2 electrons, so these 2 electrons repel each other. This is known as spin pair repulsion. डिटेल में तो हमने स्पिन पेयर रिपल्जन को डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द सेम ऑर्बिटल दे हैव अपोजिट स्पिन ड्यू टू व्हिच दे हैव अपोजिट डायपोल्स, बट अगेन ये सारी बातें ना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू गो इन फर्दर डिटेल फॉर स्पिन पेयर रिपल्जन. ठीक है. Element E is in period 3 of the periodic table. The first 8 ionization energy values of E are shown in table 1.1. Deduce the full electronics configuration of E. Explain your answer. अच्छा, एलिमेंट ई जो है वो पीरियड 3 में, अब उसने फर्स्ट 8 आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है. पीरियड 3 में वो कौन से ग्रुप का है वो मुझे नहीं पता, तो हम ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी हैव टू फाइंड द बिगेस्ट जंप बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जीज. तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना इंक्रीज है? 1820 तक हो गया, देन 2740, then from third to fourth the value has increased from 2700 to around 11000. 11000 के बाद देखो 14000, 18000, तो 2000 से डायरेक्ट 11000 हुआ है, तो ये हमारे लिए बिगेस्ट जंप है. तो देयर इज अ बिग जंप बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी. It means after removing third electron, the fourth electron to be removed is in the inner shell. तो थर्ड 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब इनर शेल पे जा रहे हो, तो आउटर मोस्ट शेल मस्ट हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप 13, राइट? अब इफ इट इज फ्रॉम ग्रुप 13 एंड पीरियड 3, तो ग्रुप 13 और पीरियड 3 में जो हमारे पास एलिमेंट होता है दैट इज एल्यूमिनियम. मतलब दिस एलिमेंट इज एल्यूमिनियम विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 13, so its electronic configuration should be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1. ठीक है. अब why? Because big jump between third and fourth ionization energies shows it is in group 13, as there are 3 valence electrons. It makes it easier to remove that. Spin pair repulsion makes it easier to remove the electron. आगे बढ़े बेटा.
चलो, some oxides of elements in period 3 are shown. Sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. Sodium is the reducing agent in this reaction. Okay, define reducing agent. Reducing agent क्या होता है? It is a substance or a species that reduces something, or reduce करने के लिए it has to give electrons to some other substance. It donates electron. ठीक है? A substance that donates electrons. Reducing agent itself gets oxidized because it has lost electron, और उसके electron किसी और ने gain किए. Write an equation for the reaction of sodium oxide with water. Sodium oxide, as we know, it is a soluble oxide. When we add sodium oxide into water, it dissolves to produce sodium hydroxide. Just have to balance the equation, right? State symbols नहीं मांगे, मैं लिखने की जरूरत नहीं है. Otherwise, if he has asked for the state symbol, then sodium oxide must be solid. Water में डालोगे liquid, and sodium hydroxide must have been aqueous. But मांगा हुआ नहीं है. Aluminium oxide is an amphoteric oxide found in bauxite. State what is meant by amphoteric oxide. Amphoteric oxide is the oxide that can react with both acid and bases. मतलब जिसमें acidic behavior भी होता है, basic behavior भी होता है. Amphoteric is and react with both acids and bases. Then last electron आपको पता कैसे चला था उस क्वेश्चन में, ये तो बताओ. हमें तो ये पता चला था कि उसके outermost shell में 3 electrons है, because after removing 3 electrons there is a big jump in ionization energy. So that's how we have realized that in order to remove the 4th electron we have to go into the inner shell. Second last shell में जाएंगे 4th electron निकालने के लिए. So the last shell must have how many electrons? 3 electrons. लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट मींस इट इज फ्रॉम ग्रुप 13. तो ग्रुप 13 की p1 पे खत्म होती है. हमें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी ना. गॉट इट? मूविंग ऑन. Aluminium oxide is purified from bauxite in several steps. The first step involves heating aluminium oxide with excess of sodium hydroxide. A colorless solution forms. लास्ट क्लास में भी जो हमने काफी स्पीड में किया था लास्ट पेपर, उसमें हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन देखा था विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. दो इक्वेशन देखी थी. मैंने कहा था कि जो आपको इजी लगे वो याद कर लो. ठीक है? तो आपको जो इक्वेशन आसान लग रही है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लेक्चर्स में भी लिखी है, जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे वी राइट सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम NaAlOH4. अब इसकी बेटा इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद करके जाना. एग्जाम में बैठ के आप बैलेंसिंग करने की कोशिश नहीं करना. मतलब याद होनी चाहिए, एटलीस्ट एक कोफिशिएंट याद कर लो, कोई एक मोल याद कर लो, बाकी पे खुद भी कर लोगे. लेकिन आप ये रिस्क नहीं लेना कि बैलेंसिंग तो मैं कर ही लूंगा. तो कभी कभार बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट हो जाता है आपका. अगेन यू जस्ट हैव टू राइट द इक्वेशन. स्टेट सिंबल्स नहीं लिखने, हमने इक्वेशन लिख दिया. आगे बढ़े. Okay, part 3 is aluminum oxide is used as a catalyst in dehydration of alcohols. State the effect of using aluminum oxide as a catalyst in dehydration of alcohol. Use the Boltzmann curve in figure 2.1 to explain your answer. Catalyst basically क्या करता है? It decreases the activation in energy by providing an alternative pathway with a lower activation energy. So let's say if activation energy without catalyst was EA and activation energy with catalyst is EA dash. जब वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है तो एरिया अंडर द ग्राफ कम होता है. एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट है, ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा है. मतलब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाउ हैव एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. पहले सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी थी.
Now we have this much number of molecules which have energies greater than activation energy. So more molecules have energies greater than activation energy. So frequency of effective collision will increase, hence the rate of a reaction. So catalyst decreases, activation energy of a reaction. So more particles, molecules भी लिख सकते हो, but best would be कि you write particles because particle एक general term है जिसमें molecules भी आ जाते हैं और ions भी आ जाते हैं. So more particles have energies. जिन पार्टिकल के पास एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो भी इफेक्टिव कोलिजन करता है, और जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो भी इफेक्टिव कोलिजन करता है. So we can write, so more particles have energies equal or greater than activation energy, hence frequency of effective collision increases. अच्छा, ग्राफ पे आप ये कलरिंग तो नहीं कर सकते हो, तो इसमें यहाँ पे आपने जैसे हैव टू शो टू टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. एक को EA लिख दो, एक को EA डैश या EA कैटलिस्ट लिख दो, जो भी आप सिंबल देना चाहो. कुछ डिफाइन तो नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख देना EA इज विदाउट catalyst and EA dash is with catalyst. चले आगे. P4O6 is a white solid that has a melting point of 24 degrees Celsius. Solid P4O6 reacts with water to form H3PO3. Reduce the type of structure and bonding. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब वो लिखता है ना स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग अलग अलग, तो आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग दोनों पे फोकस करना होता है. क्या कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट 24 डिग्री सेल्सियस है, जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट है. और कह रहा है वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है, मतलब ये एसिडिक सोल्यूशन बना रहा है. इट मीन जो मेटल ऑक्साइड है वो हाइड्रोलाइज्ड हो रही है. एसिडिक सोल्यूशन बनने का क्या मतलब है, ये हम लास्ट टाइम भी क्लोराइड्स के लिए कर रहे थे, यहाँ पे ऑक्साइड के लिए आ गया. देखो एसिडिक सोल्यूशन बना रहा है तो वो इट मींस के मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड है ये P4O6. दिस ऑक्साइड हैज बीन हाइड्रोलाइज्ड. हाइड्रोलाइज्ड होने का मतलब ये है कि उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है. और मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटिवली लोअर. 24 डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ना. लो मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है. तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इट शुड बी सिंपल मॉलिक्यूलर. ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं, सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर नहीं कहते इब्राहिम. तो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं और सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं, या सिंपल मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं. देखो ये कह सकते हो कि P4O6 has a simple molecular, sorry, is a simple molecular due to low melting point and covalent bonding as it is hydrolyzed. राइट. डिटरमिन द, राइट्स के लिए भी यही करते हैं. फिर डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO4.
तो ऑक्सीडेशन रूल्स क्या थे हमारे पास? हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेज फिक्स फॉर +1, oxygen oxidation number stays fixed, that is -2. We just have to find the oxidation number of phosphorus, तो उसको हम x कह देंगे. Overall charge over the molecule is 0, so the value of x is +3. ठीक है भाई, आगे बढ़े. When P4O6 is heated with oxygen, equation given and enthalpy change of a reaction is given. The enthalpy change of formation of P4O10 is also given. Calculate the enthalpy change of formation of P4O6. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है. We have the equation P4O6 reacting with oxygen. This is a normal reaction. इस इक्वेशन को हम किसी भी चीज की फॉर्मेशन या कंबशन नहीं कह सकते. इसका जो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है वो -1372 है. अब इसमें हमें दो चीजों की फॉर्मेशन लिंक करनी है. तो फॉर्मेशन के लिए वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट द बॉटम. तो फास्फोरस P4 सॉलिड भी ले सकते हो, P भी ले सकते हो. उसको ऑक्सीजन O2 गैस होता है स्टैंडर्ड स्टेट में. ये जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है ना ऊपर, P4O6 जो बनेगा इसकी फॉर्मेशन और P4O10 जो बनेगा इसकी फॉर्मेशन. ठीक है. Formation of P4O6 you have to find out. इसको x ले लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ P4O10 is given which is -3012. अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों एरोस ऊपर जा रहे हैं और सारा डाटा हमारे पास फॉर्मेशन का है, ठीक है, तो इसमें हम लोग शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं? व्हेन द डाटा इज फॉर फॉर्मेशन एंड द एरोस साइकिल जो है वो इस तरह से बनती है कि नीचे एलिमेंट्स होते हैं और एरोस जो है एंथैल्पी चेंजेस के सारे रिएक्टेंट साइड पे भी प्रोडक्ट साइड पे भी ऊपर जा रहे होते हैं. तो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स. एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन व्हिच इज -1372. एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एक ही साइड है ना, फॉर्मेशन ऑफ P4O10 इट इज -3012. और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में फॉर्मेशन ऑफ P4O6 है जो कि गिवन नहीं है, वो आपको निकालनी है यहाँ से. क्या बनी x की वैल्यू? आप हेसिस लॉ भी लगा सकते हो, बट बेटर है कि 1 मार्क के लिए आप अपनी ये डायरेक्ट शॉर्टकट की इक्वेशन यूज करो. मैंने हेसिस लॉ बना तो दिया है, आप ये नहीं बनाओ, आप डायरेक्ट कर दो जस्ट फॉर 1 मार्क ना, तो आपके सिर्फ आंसर का मार्क है. दिस इज 16 -1640 किलोजूल पर मोल, राइट. सही है भाई, आगे बढ़े. क्या देखना है क्वेश्चन? लास्ट पेज था. x+5 आ रहा है. हाँ सॉरी, x+ एक्चुअली वो H3PO3 है, मैंने PO4 ले लिया है. इस 3 फॉस्फोरस एसिड है. ठीक है ईमान, चलो. राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ P4O10 विद वाटर. अगेन आपने ये इक्वेशन याद की हुई है प्रोडिसिटी में. ये तो आप खैर खुद भी बना सकते हो, इतनी मुश्किल नहीं है. आपको पता है जब P4O10 को वाटर में डालोगे इट विल गिव यू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. You have to balance the equation. तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप 4 फॉस्फोरस, तो राइट हैंड साइड पे 4 फॉस्फोरिक एसिड एंड 6 मोल ऑफ वाटर. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, these equations आपके पास ऑलरेडी गिवन है. मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट
sufficiently practice it कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस याद हो। अगर आपने एग्जाम में बैठ के बनाने की कोशिश की ना, मतलब बैलेंसिंग की करने की कोशिश की, तो कभी कभार फंस जाए तो 10 बार करीबी होगी बेशक, फंस सकते हो। टाइम अगर इस पे आपके, अगर ये इक्वेशन आपको पता है, ये इक्वेशन यही है टीवीएस सिलेबस में, अगर आपने इसमें 5 सेकंड से ऊपर लगाए तो आपने अपना टाइम किल कर दिया है पेपर का। उससे याद करो बैठ के, एक पेपर पे सारी इक्वेशन एक साथ लिखो, याद करो बार बार। इधर क्या आ रहा है, +3 नहीं आ रहा, 3 - 6 + 3 आ रहा है बेटा, वो H3PO3 था, मैंने 4 ले लिया था। चलो भाई, पार्ट डी में इज सेइंग सल्फर डाइऑक्साइड आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 in the atmosphere is catalyzed by NO2। कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स की इक्वेशन याद रखनी है आपको। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, बट अगेन एयर में दिस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विल रिएक्ट बैक विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वापस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है ना आपको, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज शोइंग अ कैटालिटिक बिहेवियर। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो हाउ NO2 is regenerated in the catalytic oxidation of SO2। अच्छा ये पूछा हुआ है, NO2 will react with oxygen in the air to produce, sorry, NO will react with oxygen in the air to produce NO2। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हाफ मोल लगा दिया। अगर आपको हाफ हाफ बैलेंसिंग नहीं समझ आती है अभी भी, तो आप 2 मोल ऑफ NO और 2 मोल ऑफ NO2 लगा दो। Next, NO2 can also react with unburned hydrocarbon to form photochemical smoke। फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में हमें खुद से ये पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मोक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अनबर्न हाइड्रोकार्बन, जैसे कोई पेट्रोल का मॉलिक्यूल बगैर जले इंजन से बाहर आ जाए, some nitrogenous oxides, and there is a third component that contributes to the photochemical smoke, and what is that? होता है पेन। पेन इसकी फुल फॉर्म होती है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बट अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख दोगे तो दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसकी इक्वेशंस नहीं है सिलेबस में, बस आपको नाम याद रखना है कि स्मोक जो बनता है उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। लाइट, बिकॉज इट इज अ फोटोकेमिकल स्मोक, फोटो मींस लाइट तो रिक्वायर्ड है, साथ में नाइट्रोजनस ऑक्साइड लाइक NO2 एंड NO, एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन जिनको हम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एयर में कहां से आ रहे हैं? इंजन से जो बगैर जले बाहर आ जाएंगी फ्यूल के मॉलिक्यूल्स, उन वही है ना वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड द थर्ड थिंग रिक्वायर्ड फॉर फोटोकेमिकल स्मोक इज पेन। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ओके, अब इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, फिगर 2.2 shows how the temperature of the atmosphere varies with height from the ground। अब ऐसा ग्राफ आपने ना पहले कभी पढ़ा है ना आप कहीं अपने लेक्चर्स में पढ़ोगे। अब कोई भी, इसे बेसिकली करा क्या है इस ग्राफ में, इसने कहा है कि जो टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब जब हाइट इंक्रीज हो रही है हमारे पास, तो देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन थोड़ा और ऊपर जाके अर्थ सरफेस से टेम्परेचर अगेन इंक्रीज हो रहा है, फिर दोबारा डिक्रीज हो रहा है। अर्थ में ऐसा क्या हो रहा है एटमॉस्फेरिक लेयर्स में कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। अब वो क्वेश्चन किस तरह से बना रहा है, जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन इक्वेशन 1 हैज एन एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन -168 किलोजूल पर मोल। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये जो ऊपर था ना, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस इक्वेशन की बात कर रहा है। अच्छा, सजेस्ट हाउ द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना,
differs at a height of 20 kilometer compared with a height of 50 kilometer from the ground. अब इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन बताने का क्या मकसद है? यहाँ पे ये शो कर रहा है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब 20 किलोमीटर पे हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है इस ग्राफ से वो अराउंड -55 समथिंग आ रही है, एंड एट 50 किलोमीटर हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है वो अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस आ रही है. So at a height of 50 kilometer, the temperature is higher. 0 higher है ना -55 से. 20 किलोमीटर पे लो टेम्परेचर है और 50 किलोमीटर पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है. अब ग्राफ का काम हो गया. अब आपने ये एक्सप्लेन करना है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 20 किलोमीटर पे राइट पे ज्यादा होगी या लेफ्ट पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 50 किलोमीटर. 20 किलोमीटर पे हमारे पास देखो ये जो इंथैल्पी चेंज है वो एक्सोथर्मिक है. मतलब जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हमारे पास हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. समझ आती है बात क्या चल रही है यहाँ पे? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बेसिकली एयर में ये रिएक्शन हो रहा है ना, तो इस रिएक्शन की वजह से जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर आपका कम ज्यादा हो रहा है उस रिएक्शन की वजह से हो रहा है. यस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस साइड पे मूव होगा आपने ये बताना. तो 20 किलोमीटर पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जानी है या 50 किलोमीटर पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जानी है आपने ये बताना है. देखो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस तरह से देखनी है. टेम्परेचर, if your forward reaction is endothermic, increasing temperature will shift the position of equilibrium towards right hand side and decreasing temperature will shift the position of equilibrium towards left hand side. But if your forward reaction is exothermic, जो कि हमारा केस है exothermic वाला, तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड और टेम्परेचर कम होगा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड होगी. हाई टेम्परेचर किस पे है हमारा? 50 किलोमीटर पे. 20 किलोमीटर पे लो टेम्परेचर है तो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ एट अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर. एट 20 किलोमीटर टेम्परेचर इज लोअर देन 50 किलोमीटर. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर कम करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? टुवर्ड राइट हैंड साइड. सो position of equilibrium shifts towards right side. As forward reaction is exothermic. ठीक है भाई. इब्राहिम समझ आई बात?
आगे बढ़े। देखो 20 किलोमीटर पे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कम है, 50 किलोमीटर पे ज्यादा है। तो 20 किलोमीटर के लिए वो पूछ रहा था कि जब कम टेम्परेचर है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसमें शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है ना। हाँ, अगर बैकवर्ड की टर्म्स में लिख दो तो वो भी सही है। इब्राहिम समझ आई बात? आगे बढ़े। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोजन हैलाइड्स, hydrogen chloride, hydrogen bromide, hydrogen halide are all colorless gases at room temperature. The hydrogen halides can be formed by reacting with halogens with hydrogen. Halogen और hydrogen को react कराओगे, hydrogen halide बन जाएगा. Describe and explain the relative reactivity of halogens down the group when they react with hydrogen. Down the group reactivity of halogens क्या होती है? Decrease होती है. Halogens become less reactive down the group. The fluorine to chlorine, then bromine and iodine, because they react by gaining electrons. So their electron gaining ability decreases. और electron gaining ability को हम क्या कहते हैं? Electronegativity. And why their electronegativity decreases? Because their atomic size increases, ना? So shielding effect increases due to increase in number of shells. So effective nuclear attraction decrease हो जाती है इनकी. As down the group, electronegativity decreases as so इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन. इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसको कहते हैं? रिजल्टेंट. मतलब न्यूक्लियर इफेक्टिव का वर्ड डाउन द ग्रुप में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डाउन द ग्रुप देखो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा होता है ना, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही होती है. डिस्पाइट इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, शील्डिंग भी बढ़ रहा होता है. डिस्पाइट इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्टिल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो शील्डिंग का इफेक्ट बेसिकली जीत रहा है. मतलब शील्डिंग जो है वो रिपल्जन दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्शन दे रहा है. तो जीत कौन रहा है? शील्डिंग जीत रहा है. तो इसलिए हम इफेक्टिव या रिजल्टेंट न्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात करते हैं. ठीक है, तो जो वर्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इट विल अर्न यू 1 मार्क. Part D is HCl is a product of several different reactions. Some of these are shown. SiCl4 when reacts with water it produces HCl, and sodium chloride when reacts with sulfuric acid it also produces HCl. Write an equation for reaction 1. Reaction 1 वाली equation तो हाइड्रोलिसिस ऑफ पीरियड 3 क्लोराइड वाली इक्वेशन है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने याद रखनी है. तो ये आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है और HCl बनाता है. यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. तो ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखना. रिएक्शन 2 वाली इक्वेशन आपकी ग्रुप 17 वाली है, जिसमें सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा. और फिर सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज क्लोराइड आइन, तो वो रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड बना के छोड़ देगा. आगे पूछा हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली इसने. आगे देखते हैं. हाँ, अब इसमें वो कह रहे हैं कि NaCl when reacts with sulfuric acid तो HCl और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है. लेकिन जब आप ब्रोमीन को सोडियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर रिएक्शन नहीं रुकेगा.
जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा इसमें से ब्रोमाइड आयन विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस ब्रोमीन, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता है। अब इसकी इक्वेशन भी लाइन से याद रखनी है आपने, सोडियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम ब्रोमाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम आयोडाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। NaCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 जब डालोगे तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ एज अ एसिड काम करेगा, लेकिन सोडियम ब्रोमाइड में जब सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा एसिड काम करेगा, फिर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। आई होप ये इक्वेशंस आपको याद है सारी। सोडियम क्लोराइड में जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, इट वाज प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HCl, बस ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज एन एसिड इन दिस रिएक्शन। ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा एसिड के साथ, जो चीज रिएक्ट करती है वो बेस होती है। अब NaCl must be acting as a base because it is accepting an H positive ion from the sulfuric acid, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो NaCl as a base ले गए इसमें। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, सही है। और रिएक्शन ब्रोमाइड के साथ जो रिएक्शन है ना, उसमें क्या हुआ है, जब सोडियम ब्रोमाइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो पहले सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज एन एसिड एंड सोडियम ब्रोमाइड इज एक्टिंग एज अ बेस, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन इसके बाद भी आगे फर्दर होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद sulfuric acid because bromide ion are the powerful reducing agent which can further reduce sulfuric acid, or in other words we can say sulfuric acid can further oxidize bromide ion but not chloride ion। तो bromide ion जो है वो भी ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड मस्ट बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो सेकंड रिएक्शन इसका रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। we have two type of reaction in with sodium bromide and sulfuric acid। माइक का ऑप्शन में ओपन कर देता है इब्राहिम, ये लो पूछो क्या पूछना है। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे HCl बना है, लेकिन अगर जैसे ब्रोमीन होता तो वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड फर्दर भी ऑक्सीडाइज होता ना, तो हाँ जो यही बहुत तो सारे बना है। प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बाद। अब ये ग्रीन लाइन में इक्वेशन बनाई है वही तो है। इब्राहिम मैं भी वही बात कर रहा हूँ, ग्रीन लाइन में जो इक्वेशन बनाई है वो वाली है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेइंग व्हेन हीटेड विद अ बंसन बर्नर HCl do not decompose whereas hydrogen iodide decomposes to produce hydrogen and iodine। भाई HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड वीक है, बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, एंड लॉन्गर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्सप्लेन दिस डिफरेंस, बिकॉज HCl bond is stronger than hydrogen iodide bond। तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। एक्सप्लेनेशन मांगता, मांगी भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन मांगता तो क्या लिखते, एज बॉन्ड लेंथ increases bond enthalpy, या बॉन्ड एंथैल्पी को हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। अब न्यू सिलेबस में उसको बॉन्ड एनर्जी का नाम ज्यादा यूज करता है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, shorter bond lengths are stronger than longer ones, yes। देखो खिजर, पहली बात ये आप ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये आपने याद किया हुआ है, तो हम क्वेश्चन की इक्वेशन को देखते हुए डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि एसिड बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड इज डोनेटिंग हाइड्रोजन आयंस टू सोडियम ब्रोमाइड, तो सोडियम ब्रोमाइड बेस की तरह
काम कर रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड काम कर रहा है. सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग अ प्रोटॉन डोनर, sodium bromide is accepting a proton, so it is must be acting as a base. That's why first reaction is acid base reaction. ठीक है, पहली बात तो ये हमने इक्वेशन याद है और ये हमने अपने लेक्चर्स में लिखा हुआ भी है. लेक्चर्स एक बार सही से गो थ्रू करना. फर्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड जस्ट एक्ट एज एन एसिड, but in the second step where sulfuric acid is further oxidizing bromide ion or iodide ion, sulfuric acid is acting as an oxidizing agent. But sulfuric acid cannot oxidize chloride ion because it is not a powerful enough oxidizing agent to oxidize the chloride ion. तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर जाएगा. क्लोराइड के केस में सिर्फ एसिड के काम कर रहा है. ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में सेकंड स्टेप में वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट, हाइड्रोजन हैलाइड डिसॉल्व इन वाटर to form strong Bronsted-Lowry acids. The concentration of strong acid can be determined by titration. State what is meant by the term strong Bronsted-Lowry acid. You have to explain strong as well as an acid. The acids क्या होते हैं? Acids are proton donors and strong acids are those which ionizes or dissociates completely in aqueous solution. Acids are proton donors and proton is H positive ion, and strong acids ionizes की जगह you can also use the word dissociates. Completely in aqueous solution. नहीं, एक्सप्लेनेशन में इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन शो नहीं करनी थी, वो बस मैं रिकॉल के लिए आपको बता रहा था. एक्सप्लेनेशन इक्वेशन शो नहीं करनी थी. हमें जो है ना बताना था क्या लिखना था. ये तो हमने लिखा ही नहीं ना. H2SO4 with hydrogen bromide is a strong enough oxidizing agent to oxidize bromide ion but not chloride ion. चले आगे. टाइट्रेशन कर्व्स बनाना है. फर्स्ट कह रहा है on figure 3.2 sketch the pH titration curve produced when 0.1 mole of sodium hydroxide is added to 25 centimeter cube of 0.1 molar of hydrogen bromide to access. अच्छा जी, अब इसमें सारा प्रॉब्लम ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डाल रहे हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो पीएच की वैल्यूज आपको नहीं पता. तो हमने स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए पीएच की वैल्यूज याद की भी ना, जनरल पीएच वैल्यूज. लेट्स से अभी आप वॉल्यूम जिसका ऐड करवा रहे हो वो ब्यूरेट में होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यू आर एडिंग इट फ्रॉम अ ब्यूरेट एंड इन द फ्लास्क यू हैव हाइड्रोजन ब्रोमाइड व्हिच इज एन एसिड. ठीक है, अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बारे में उसने हमें ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड्स वाले जो एसिड्स होते हैं उनके बारे में उसने हिंट दे दी है ना, कि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स वाले एसिड होते हैं they dissolve in water to form strong Bronsted-Lowry acid. So hydrogen bromide must be a strong acid. तो जो pH की वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी वो आपको खुद से डिसाइड करनी है. देखो, आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे हैव अ pH वैल्यू ऑफ लेस देन 2. आई थिंक लास्ट आपको ही लिखवा रहा था, नहीं ओ लेवल पे लिख रहे थे. स्ट्रॉन्ग एसिड की जो pH वैल्यूज होती हैं रेंज फ्रॉम 1 to 2. आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो. ऑन दी अदर हैंड वीक एसिड की जो pH वैल्यू आप लोगे
वो आप 4 से 7 के बीच में कोई भी ले सकते हो, 4 ले लो, 5 ले लो, उसको वीक ही कंसीडर करते हैं फिर। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच की वैल्यू आप 13 से 14 तक कुछ भी ले सकते हो, और वीक बेस की पीएच की वैल्यू आप यूजुअली 11 हम लेते हैं, बट 7 से 11 के बीच में आप कोई भी ले सकते हो ना, मतलब 7 से ऊपर और 11 से कम, या 11 ले लो। एक एक वैल्यू याद कर लो, रेंज तो याद नहीं करनी है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की आप याद कर लो कि भाई मुझे 1 लेनी, वीक एसिड की मैं हमेशा 4 लूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस की मैं 13 ले लूंगा, और वीक बेस की लेट से मैं 11 ले लूंगा। आपकी मर्जी है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको पीएच की वैल्यूज नहीं बताई गई है, और पीएच की वैल्यूज बेसिकली हमारे पास पीएच निकालते कैसे हैं वो तो हम A2 में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो टाइट्रेशन कर्व है ना, ये 2022 के बाद A2 से निकल के AS में आया था, तो पीएच निकालने का फॉर्मूला तो साथ नहीं आया, बस पीएच कर्व आ गया। तो इनिशियल पीएच ऑफ एसिड क्या होगा फ्लास्क में वो हमें नहीं पता, तो वो हमें वैल्यू खुद ही लेनी है, जो कि हम 1 ले लेते हैं, इनिशियल पीएच ही है। और क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करवा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गेट इन एक्सेस, हमारे पास ये जो बिग फ्लास्क में सोल्यूशन है वो कंप्लीटली अल्कलाइन हो जाएगा, तो उसका फाइनल पीएच की वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली वाली हो जाएगी, जो 13 तक ले लेते हैं, 13 तक पहुंचनी है। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, पीएच 1 से। अब देखो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और अल्कली भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो एंड पॉइंट बनता है, मतलब जो वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट बनेगा, वो एग्जैक्टली पीएच 7 पे बनना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली में यही पढ़ा है ना, वीक एसिड और वीक अल्कली में भी 7 पे ही आता है वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक अल्कली में भी डिफरेंस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मिड पॉइंट वर्टिकल लाइन का बिलो पीएच 7 आएगा, और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो अबव 7 आता है वो। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड जब डालते हैं तो जो हमारे पीएच की वैल्यू है वो स्लो चेंज शो करती है, मतलब लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब करीब बनेगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम हमें नहीं पता क्या है, कि मतलब किस वॉल्यूम पे एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, मतलब व्हाट वॉल्यूम ऑफ अल्कली इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रेजेंट इन दी फ्लास्क। तो उसके लिए आपको न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। It will react to produce sodium bromide salt and water, और जो मोलर रेशियो आएगा बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज 1:1। इसके लिए आप मोलर रेशियो भी यूज कर सकते हो, पहले आप एसिड की जो कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम है उससे मोल्स निकालो, फिर अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालो, और फिर कंसेंट्रेशन यूज करके वॉल्यूम निकालो। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम लगाते हैं C1V1/N1 C2V2/N2, मतलब हम क्या करें, पहले एसिड के कंसेंट्रेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे C1 को आप अगर अल्कली की लेना चाह रहे हो अल्कली की ले लो, मतलब अगर मैं C1V1N1 अल्कली का डाटा ले लेता हूं तो कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कली है 0.1, वॉल्यूम ऑफ अल्कली कितना लगेगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए वही तो निकालना है। ये जो N1 है वो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दी इक्वेशन है, जो कि 1 है। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड 0.1 गिवन है, और वॉल्यूम उसका कितना है 25, और उसके मोल्स इक्वेशन में 1 है, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए लगा है। और ये कैलकुलेशन बड़ी आसान सी होगी, देखो 0.1 कैंसिल हो गया, तो what volume of alkali is required to completely neutralize hydrogen bromide present in the flask, that is 25 cm। तो आपने जो वर्टिकल लाइन ऊपर उठानी है वो 25 cm क्यूब से उठानी होती है, 25 cm क्यूब से लाइन वर्टिकली ऊपर जाएगी, कहां तक ऊपर जाएगी, pH 13 के बिल्कुल करीब जाके फिर लाइन को स्लोली हॉरिजॉन्टल कर देना। ठीक है, जो स्लो चेंज होता है दिस शोज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली, ग्रेजुअल चेंज होता है वो वीक एसिड और वीक अल्कली को शो करता है। जैसे जो सेकंड ग्राफ हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है उसने अमोनिया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बीच में, और हमने ये याद किया हुआ है कि जो अमोनिया है वो वीक अल्कली है, बिकॉज एक्वस अमोनिया इज बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट? When it reacts with hydrogen bromide, it produces a salt which must be ammonium bromide and water.
इसकी न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन में भी स्टोइचियोमेट्रिक मोल 1:1 का ही आएगा। इसमें भी आपने C1V1 ओवर N1 एंड C2V2 ओवर N2 लगाना है। तो अमोनियम एक्वस अमोनिया की कंसंट्रेशन है 0.1, उसका वॉल्यूम निकालना है, उसके स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स इक्वेशन में 1 है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगेन 0.1 का लिया हुआ है, 25 cm³ और उसके भी मोल्स 1 है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो इसमें भी उतना ही आ रहा है, 25 cm। लेकिन इस ग्राफ में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि एक्वस अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ये हमने याद किया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसके जो पीएच की वैल्यू होगी वो फिर 13 तक नहीं जाएगी, फिर हमने क्या वीक पीएच की 11 तक याद की हुई है ना, 11 तक जाएगी। और स्टार्ट कहाँ से होगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही है ना, फ्लास्क में तो अभी एसिड है, तो फ्लास्क में पीएच 1 है, वो स्लोली चेंज होगा, मतलब लाइन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बनेगी। अब ये जो वर्टिकल लाइन हमें बनानी है वो इस तरह से बनानी है कि इस वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट 7 से पीछे हो। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एंड पॉइंट जो होगा वो एसिडिक रेंज में आएगा। इसको कहां तक ऊपर उठाओगे, अब देखो हमें 11 के करीब करीब नहीं जाना है, क्योंकि ये वीक एल्कली है। हमें क्या करना है, 11 से थोड़ा दूर रुक के इस तरह से ग्रेजुअल चेंज शो करना होता है वीक एसिड या वीक एल्कली के लिए। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट आना है वो 7 से नीचे ही आएगा पीएच वैल्यू। दिस इज द एंड पॉइंट। ठीक है भाई, ये है हमारे टाइट्रेशन कर्व्स। आगे बढ़े। टाइट्रेशन कर्व की प्रैक्टिस नहीं है तो रिकॉर्डेड लेक्चर ड्राइव पे केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बार जाके देख लेना लेक्चर। अब देखो ये जो मैंने 8 से कर्विंग स्टार्ट की है, आप कहते कि मैं थोड़ा ऊपर जाके कर्व स्टार्ट कर देता या थोड़ा नीचे से ही कर देता, तो हाँ वो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज हमें नहीं पता एंड पॉइंट की, तो हम इसको अंदाजे से ही बनाएंगे। तो अगर आप कहोगे मैंने कर्व जो है वो थोड़ा सा 6 से ऊपर जाके मैंने कर्व स्टार्ट कर दिया, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। हाँ, ऐसा भी नहीं करना कि आप जो है वो कर्व नीचे से यूं स्टार्ट कर दो, थोड़ा ऊपर जाना, 11 से 2-3 पीएच वैल्यूज नीचे पे कर्व स्टार्ट कर दें। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट विद प्रोपीन टू फॉर्म ब्रोमो एल्केन। Complete the diagram to show the mechanism of hydrogen bromide and propene to form the major organic product. ठीक है जी। अब आपने एल्कीन के साथ जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड होगा तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ब्रोमीन विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कर्ली एरो सारे बनाने, डबल बॉन्ड विल अटैक दिस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। उसके बाद क्या होना है, अब कार्बोकैटाइन बनेगा, लेकिन अब हम हाइड्रोजन को कहाँ पे लगाएंगे, मेजर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं ना वो एक्चुअली। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए आपको हाइड्रोजन जो अटैच करना है वो उस कार्बन पे अटैच करना है जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, मार्कोवनिकोव्स रूल। तो कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे, राइट वाला जो है। तो उस पे जब नया वाला हाइड्रोजन लगा दोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सेकंड कार्बन पे आएगा, तो दिस सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा एंड दिस विल यील्ड अ मेजर प्रोडक्ट। मतलब अब जो ब्रोमीन आके लगना है वो आपका बीच वाले कार्बन पे लगना है 2-ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 2-ब्रोमोप्रोपेन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से बन रहा है तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सारे कर्ली एरोस। अच्छा, बीच में ये जो ब्रोमाइड आइन बना है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना भी जरूरी है, और ये इसको पॉजिटिव कार्बन को अटैक करेगा। फिर आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन व्हाई द 2 ब्रोमो एल्केन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इक्वल अमाउंट, बिकॉज आपके पास वन ऑफ द ब्रोमो एल्केन इज अ मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बोकैटाइन व्हिच इज मोर स्टेबल ड्यू टू मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बिकॉज द पॉजिटिव कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, द कार्बन टू विच द पॉजिटिव कार्बन has
two alkyls directly attached to it, and alkyl groups are have electron releasing effect. वो अपने इलेक्ट्रॉन जब कार्बन के तरफ रिलीज करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू छोटी हो जाती है, एंड दिस कार्बोकैटायन बिहेव्स मोर स्टेबल. तो हमने क्या याद किया हुआ है? एस टू ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म. आप जनरल बात भी लिख सकते हो, इतना प्रोडक्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेजर प्रोडक्ट है. आपसे ये लिख सकते हो एज अ मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड from secondary carbocation which is more stable due to greater positive inductive effect. ठीक हो गया. Next he is saying reaction of bromobutane. This is bromopropane, 3 carbon atoms, and sodium hydroxide in different depending on whether water is ethanol or used as a solvent. Okay. जब आप हेलोजन एल्केन को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और अल्कोहल बनता है, और जब आप इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो एलिमिनेशन होती है और एल्कीन बनता है. मतलब जब आप ब्रोमोप्रोपेन को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ब्रोमीन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्साइड, OH आ जाएगा अल्कोहल, और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसका क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड, क्योंकि जो ब्रोमीन निकला है वो सोडियम के साथ लग जाएगा. और एलिमिनेशन कब होगी? जब आप इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो एलिमिनेशन हो जाती है, राइट. इसमें जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है वो ब्रोमीन निकलेगा और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? हाइड्रोजन ब्रोमाइड. बेसिकली इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड. ठीक है. लेकिन क्योंकि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो रिएक्ट नहीं हुआ ना हैलोजन एल्केन के, तो ये आपस में रिएक्ट करके, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड है, अभी अभी देखा आपने, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, तो फाइनल मिक्सचर में आपको सोडियम ब्रोमाइड और वाटर मिल रहा होता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड. ठीक हो गया. आगे बढ़े. आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया होगा ना. कर लेते हैं चलो उसको. लास्ट टाइम भी पेपर पूरा नहीं हुआ था. कंपाउंड J and K are found in plant oils. Complete table 4.12 state what would you observe when J reacts with reagents listed. अब J has aldehyde functional group and a ketone functional group, and K has a carboxyl functional group and alkene. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है ना. तो 2,4 DNPH जब J में डालोगे तो आपको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ आपको ऑरेंज PPT मिलेगा, टॉलिन्स के साथ सिल्वर मिरर मिलेगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है, और सोडियम मेटल और अल्कोहल भी है इसमें. अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना टू प्रोड्यूस ईथ ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो बबल्स ऑफ गैस, ऑब्जर्वेशन में बबल्स ऑफ गैस, कलरलेस गैस. हाँ इब्राहिम, सोडियम के साथ भी है. अल्कोहल है ना, अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है. रिमेंबर इफ वी हैव इथेनॉल व्हिच इज CH3 CH2 OH, and when we add sodium metal into ethanol it produces
sodium ethoxide and hydrogen gas. Sodium will react with alcohol, but alkali sodium hydroxide does not react with alcohol. आगे कह रहे हैं J has two optical isomers because J has a chiral carbon. ये वाला जो कार्बन है बीच वाला chiral है. Draw the three-dimensional structure of the two optical isomers of J. ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है आपने. एक जगह एल्डिहाइड लगा हुआ है, एक जगह CH3 लगा हुआ है और एक जगह कीटोन लगा हुआ है COCH3. दिस इज योर कायरल कार्बन. इसका मिरर इमेज जब बनाओगे तो मिरर इमेज में जो बॉन्ड्स है ना उनका भी आपने मिरर करना है. मतलब वेज मिरर लाइन से अवे जा रहा है लेफ्ट वाले में तो आपने अवे ही बनाना है. हाँ वेज और डॉटेड कोई भी बना सकते हो, वो मसला नहीं है. अच्छा लेटर्स को लेटरली इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आप सीधे सीधे लिख दो. केमिस्ट्री है तो इतना मसला नहीं है. मतलब CHO को आप इस तरह से जरूरत नहीं है कि आप OHC लिखो, वो कोई इशू नहीं है हमारे पास. लिखना चाहो लिख दो, बट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप CHO भी लिख देते हो. वेज और डॉटेड किसी के भी साथ बना दो, कोई इशू नहीं है. मतलब अगर आप कहो कि मैं CH3 जो है वो वेज के साथ बना देता और कीटोन जो है COCH3 में डॉटेड के साथ बना देता तो क्या वो गलत हो जाता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ठीक है भाई, आगे बढ़े. Next is saying K is used to make addition polymer perspex. A synthesis of perspex is shown. Perspex glass को कहते हैं वैसे. Identify L, state the condition required for reaction 1. क्या हुआ है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एस्टर में कन्वर्ट हुआ है. दिस इज एस्टर COCH3. जो अल्कोहल आके रिएक्ट हुआ है वो 1 कार्बन एटम वाला अल्कोहल है. मतलब दिस इज मीथानॉल से आया होगा ना ये. तो जो रिएक्टेंट L है वो क्या है? मीथानॉल. और एस्टेरिफिकेशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? हीट करते हो विद मिनरल एसिड, मतलब हीट विद सल्फ्यूरिक एसिड. क्या सॉरी, हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं बल्कि हीट अंडर रिफ्लक्स विद concentrated H2SO4. Draw one repeat unit of the addition polymer of perspex. एडिशन पॉलीमराइजेशन में आप क्या करते हो? जो मोनोमर्स होता है डबल बॉन्डेड कार्बन के राइट और लेफ्ट पे आपको कुछ नहीं लिखना, तो जो भी चीजें हैं वो ऊपर नीचे करके लिख दो. वन रिपीट यूनिट बनाना है ना, तो आपने बस एक मोनोमर बना के जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो खत्म कर देना, और राइट और लेफ्ट जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इससे आगे कंटिन्यूटी बॉन्ड स्ट्रेच कर देना. दैट्स इट. ठीक है. वन रिपीट यूनिट कहा बता के दो कहता तो मैं एक और मोनोमर इसके बराबर में बना देता. इब्राहिम एस्टेरिफिकेशन है बेटा. कार्बोक्सिलिक एसिड था मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया है तो हमारे पास COOCH3 ये बना हुआ है. ठीक है. चलो मूविंग ऑन. यूज इंफॉर्मेशन इन टेबल 4.2 to suggest how the infrared spectra of M and perspex would differ. अब M में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो एस्टर है और एल्कीन है, और perspex में पॉलीमर बनेगा ना. अभी हमने नीचे बनाया रिपीट यूनिट, तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होना है बस, राइट. बाकी एस्टर जो ब्रांच में है वो तो रहेगा ना. तो जो एल्कीन वाली पीक होगी या एल्कीन वाली जो एब्जॉर्प्शन होगी वो खत्म हो जाएगी.
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो एब्जॉर्प्शन है उसकी एब्जॉर्प्शन आती है 1500 से 1680, तो ये एम में तो होगी, लेकिन पर्सपेक्स में ये वाली एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होता है ना जब एडिशन पॉलीमर बनता है। तो इसमें वो पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस होगा, तो इन एम या इन perspex no absorption at 1500 till 1680 centimeter inverse as no carbon carbon double bond in perspex. perspex एक पॉलीमर है, इसका ये जो हमने रिपीट यूनिट बनाया ना एडिशन पॉलीमर है वही है, इसका मोनोमर ऊपर दिया हुआ था ना एम, ठीक है। प्लास्टिक होता है मतलब ग्लास के अल्टरनेट पे जो यूज करते हैं ना वो पर्सपेक्स होता है। पर्सपेक्स जो हेलमेट के ग्लासेस होते हैं, जो आपके प्लास्टिक वाले सन ग्लासेस होते हैं, पर्सपेक्स है वो सारा। चले आगे बढ़े। आगे है, आगे भी है भाई। अच्छा ये लास्ट पार्ट है, चलो लास्ट पार्ट है ये भी कर लो। K can be made from propane in the three-step synthesis. Complete figure table 4.3 identify the regions. Okay. स्टेप 1 में क्या हुआ है, नाइट्राइल आके ऐड हुआ है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बना है। कैसे करवाते हैं ये रिएक्शन, हम लोग पोटेशियम साइनाइड डालते हैं विद एसिड, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, कुछ भी ले लो, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड। उसके बाद नाइट्राइल जो है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल वाला रिएक्शन। स्टेप 2 इज हाइड्रोलिसिस। कैसे करते हैं, एसिड के साथ हीट करते हैं। फिर स्टेप 3 में डबल बॉन्ड आया है दो कार्बन के बीच में, मतलब फर्स्ट और ये वाले जो कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड आया, मतलब OH और बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन रहता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, इलिमिनेशन भी कह सकते हैं। कैसे करते हैं, दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हैं, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भी कर सकते हैं और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से भी कर सकते हैं। इसने नीचे लिख दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी, तो दिस इज डिहाइड्रेशन। स्टेप 1 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस ऑफ, स्टेप 1 में सोडियम साइनाइड एंड एसिड, स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस के लिए कोई भी एसिड ले लो, H पॉजिटिव आयन लिख दो बेशक, कोई मसला नहीं, सिर्फ रीजेंट पूछे ना, हीट वगैरह नहीं पूछा, कंडीशन नहीं पूछी, ठीक है भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इथेनॉल जो हम लेते हैं ना वो हम लेते हैं बेसिकली हैलोजेनो एल्केन्स की एलिमिनेशन के लिए, जब हैलोजेनो एल्केन से एल्कीन बनाते हैं, और अल्कोहल से एलिमिनेशन करने के लिए हम लोग वो लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। हाँ वी आर डन। चलो नेक्स्ट क्लास कमिंग वीक है, बट खुद से पेपर्स करो, हमने तो आई थिंक आज 8th पेपर किया था, लेकिन जब खुद से नहीं करोगे तो थोड़ा सा इशू होगा आप लोगों को, बाद में प्रैक्टिस करो, आपका एग्जाम में भी काफी टाइम है, आई थिंक 14 मई को है, तो देखते हैं कमिंग वीक अगर आपका स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दें तो बेटर होगा आई थिंक। चलो ओके, हाफिज।